नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में कोविड-19 और उससे जुड़ी तमाम जितने भी आपके सवाल हैं उसके जवाब हम इस प्रोग्राम में देंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप फेसबुक लाइव से जुड़ सकते हैं और कोई भी प्रश्न कोरोना से जुड़ा हुआ हो तो आप हमसे कर सकते हैं। कभी भी अनुमान पे मत जाइएगा, ऑथेंटिक जानकारी लीजिएगा। और ये प्रोग्राम ऑथेंटिक इसलिए है कि डॉक्टर्स का एक पैनल डायरेक्ट आपके साथ इसमें जुड़ता है और आपके सवालों के जवाब देता है। तो डॉक्टर्स का एक पैनल हमसे जुड़ गया है और मेरे साथ है अंग्रेजी में मेरे सहयोगी शुभेंदु। Absolutely, thank you, Rama, and welcome to Dr. Speak once again, your one-stop destination to remove all doubts related to COVID-19. Let me introduce you quickly to the panel of medical experts who are joining us today. Dr. Prashun Chatterjee, Additional Professor, Department of Geriatric Medicine, All India Institute of Medical Sciences. Also joining us is Senior Physician Dr. S.M. Raheja. A very warm welcome to both our medical experts. Remember, this is a live program. You can see the phone number being scrolled on the screen. You can also connect with us live on Facebook and Twitter and put your questions to our medical experts and they will answer. Dr. Raheja, if I can come to you, sir, if I can begin with you. We keep saying encouraging numbers keep coming vis-a-vis COVID. India's recovery rate has crossed the 92% mark as well. In the current situation, how do you see the situation of the pandemic in India? I'm saying this because there are concerns about the festive season where the numbers could rise, but how do you see it as a medical expert? Definitely now we are at the point when the festive season is going on, and at the same time the temperature is dipping and air pollution levels are also high in the northern part of the India. So this is all the environment which is viral friendly. Because of the festive season, people are going to the market and they are coming together, mixing with each other. Now at this point, I must say all these factors are going to help the virus for the transmission. But it is now on us to have a COVID appropriate behavior. With that, I mean stay home and go out only if very necessary, and when you are going out, please wear your mask properly. I must say, wear it properly. I have seen people wearing masks like this, then like this, not like this. It has to be appropriate, covering your nose, your mouth, everything in total. And the virus can enter through the eyes, nose and mouth. So these are the three places through which the virus can enter into our body. So we have to use this social vaccine, wear the mask and maintain a distance of 2 yards. 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और तीसरी चीज है हैंड हाइजीन। हाथों को आप यहाँ वहाँ ना छुएं, और यदि छूते हैं तो उसके बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से 20 से 40 सेकंड तक धोना है। और अननेसेसरली आंख को, नाक को नहीं छूना अपनी उंगलियों से, या मुंह के अंदर उंगली नहीं डालनी। बिकॉज जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो ये वायरस हमारे टिप्स पे आ जाएगा, फिंगर्स की, और जैसे हमने नाक में उंगली लगाई, आंख में लगाई, मुंह में लगाई तो अंदर चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज दी सोशल वैक्सीन, और ये अब हमारे पे निर्भर करता है। और हमें सबको एज ए टीम, एज ए नेशन, ये हमारा कर्तव्य है कि अपने लिए और दूसरों के लिए हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, अपने देश को बचाएं। बिल्कुल, एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है व्यक्तिगत के साथ साथ। डॉक्टर चैटर्जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर चैटर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं और तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं कोविड काल में, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, अब जिस तरह से जो आंकड़े हैं, जिस तरह से मृत्यु दर कम हुई है, और फिर भी कहना यह है कि जो कोविड का अभी कहर कह लीजिए या परेशानी कह लीजिए, वो अभी टली नहीं है। तो उसमें स्व अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। त्योहार हैं, आज धनतेरस है, कल दिवाली है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जी एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, क्योंकि
मैं तो अभी भी खतरा टला है ये मैं नहीं देख रहा हूँ। इफ यू सी द सिचुएशन ऑफ नेशनल कैपिटल केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ हद तक इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार है। जैसे मेरे पहले डॉक्टर साहब ने सही कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा है। मास्क इज नॉट फॉर योर स्टाइल, मास्क इज नॉट टू जस्ट टू आई वॉज द पुलिस, बट इट इज फॉर योर सेफ्टी एंड इट इज फॉर अदर सेफ्टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को somehow ये लगने लगा है कि केस फैटेलिटी कम है तो होगा भी तो भी हम बच जाएंगे, बट दैट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग। देखिए किसी का भी मम्मी पापा दादा दादी या यंग जनरेशन किसी का भी मॉर्टेलिटी होता है तो वो अगर लाखों में भी एक का होता है तो वो भी तो हम लोग जिम्मेदार है ना उसके लिए। So to stop a pandemic, first thing is very very important, that is our public awareness and हमारा behavior. So और यूजुअली हम बोलते हैं कि एक बिहेवियर एक्वायर करने के लिए आपको 6 हफ्ता लगता है, तो हम तो 6 महीने पार कर चुके हैं, अभी भी क्यों मास्क प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, क्यों अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं कर पा रहे, क्यों अपना डिस्टेंसिंग में नहीं मेंटेन कर पा रहे। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट वेरी क्लियरली। त्योहार के इस टाइम में तो और इम्पोर्टेंट चीज है पॉल्यूशन है। आपका ब्रोंकियल एस्मा, सीओपीडी, जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, कार्डियक इवेंट भी बढ़ रहा है, इवन लॉन्ग रन में डिमेंशिया भी बढ़ती है। एज ए जेरियाट्रिशियन ये मेरा कंसर्न है। तो आपको तो बाहर कम से कम निकलना चाहिए एंड यू सेलिब्रेट एट योर होम। एंड खुशी तो मन के अंदर है, उसके लिए बाहर जाके पब्लिक प्लेस में हल्ला करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी वेरी वेरी आई विल से कंसर्न होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि ये हम सब बचेंगे तभी मतलब एक बचने से, हम बचने से नहीं होगा, हमारे पड़ोसी को भी बचना है, नहीं तो उनसे भी मुझे बाद में कोविड हो सकता है। और कोविड रिकरेंट हो सकता है, एक बार हो गया मतलब आप लाइफ लॉन्ग इम्यून हो गया ऐसे भी नहीं है। सेकेंड टाइम हो रहा है, उसका सिवियरिटी ज्यादा हो रहा है। तो इट इज अ मेजर कंसर्न आई विल से। अभी भी हमारा कुछ भी खतरा टला नहीं है। वी आर डेफिनेटली एट हाई रिस्क ऑफ टिल कोविड ट्रांसमिशन, थर्ड फेज फोर्थ फेज कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, स्पेशली क्राउड में तो जाइए मत जितना संभव है। इवन मेट्रो में भी मैं सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है। तो एज ए पैसेंजर वी हैव टू बी केयरफुल कि सरकार ने सीट में क्रॉस किया फिर भी हम जबरदस्ती अगर बैठ जाते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल। Right. Dr. Chatterjee, you rightly mentioned that the numbers are spiking, particularly in the national capital. In Delhi, the festive season is around, so is the pollution. We get a lot of questions, Dr. Chatterjee, about this twin challenge. One is COVID, the other is pollution. For both, we've been asked to wear masks. So is there a common useful mask that can be worn and it can protect us from both these challenges? Definitely. But first, if I say protection is not to go out if it is not mandatory. We are doctor, you are journalist, so you have to go out, but not for everyone. जितना जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आप करिए। सीनियर सिटीजन को तो मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद कंपल्सरीली बाहर जाना है ऐसा नहीं है, सो दे शुड बी केयरफुल। बच्चे लोगों को आई अंडरस्टैंड दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे आर नॉट प्लेइंग आउटडोर गेम फॉर कपल ऑफ मंथ्स, they are going, but again they can wear mask and play as much as possible. So this is a माने cumulative effect हमें देना है, पूरा सबको एक साथ मिलके इसके अगेंस्ट में लड़ना है। और मास्क विल डेफिनेटली 3 लेयर क्लॉथ मास्क आप यूज करिए, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पार्शियली फ्रॉम पॉल्यूशन, पार्शियली फ्रॉम कोविड-19, बट डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Of course, from case fatality, हम ये बोल सकते हैं because the virus has crossed billion body and cell, I can say. So it has also mutated. So one of the probable cause could be, because we are not sure, could be that after mutation, the present strain which is infecting each other, that may be less virulent. So that has also reduced mortality. But उससे हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, ना हमें सोचना चाहिए कि भाई होगा भी तो भी कुछ नहीं होगा। ये एक सोच, मैं क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों से, तो ये एक सोच आ गया कि मुझे तो नहीं होगा कोरोना, हो भी जाए तो क्या होगा, ठीक हो जाएंगे, सरकार सारे फैसिलिटी दे रहा है। सो दैट कंसेप्ट शुड नॉट बी देयर। बिल्कुल डॉक्टर चैटर्जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो सोच है कि मुझे तो नहीं होगा,
ये कितनी बाधक साबित हो सकती है कोरोना पर नियंत्रण के लिए, जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, या जिस तरह से अभी तक सहयोग जो है आम लोगों का भी काफ़ी इसमें मिला है? बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो मास्क का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखते हैं। केवल कुछ जगह पर ऐसा है कि इस तरह की एक सोच आ जाती है। तो इसके पीछे क्या कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है? क्या ये इस समस्या से बचने का एक अपना तरीका है जो हमारा ब्रेन है वो ढूंढ लेता है, या फिर इसका कोई और रीजन है? और किस तरह से इसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि इस पर लगाम लगाई जा सके और जो अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा फैलाई जा सके? हर एक व्यक्ति अपने आप में अवेयरनेस का एक सिपाही, जिसे हम कह सकते हैं, वो एम्बेसडर बने। एब्सोल्युटली यू आर राइट, वही होना है। हम लोग जो भी, इवन हम 4 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 4 लोग भी 400 लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और ये दिस शुड बी द कल्चर। हमें सबको ये करना है। हम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को समझाए, पड़ोसी को बोले। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि देखिए आप अगर तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे तो ये आपके लिए भी खतरनाक है, हमारे लिए भी खतरनाक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, पीपल, मतलब उनके पास और पेशेंस नहीं है, धैर्य वो नहीं है कि 6 महीने से मैंने अपना पीयर ग्रुप से नहीं मिला, हमने सोशलाइजेशन नहीं किया, हमने पार्टी नहीं किया। ये सब चीजें से क्या होता है, अगर आप पुराने हिस्ट्री भी देखेंगे, पहले बार भी जो पैंडेमिक हुआ था, सेकेंड वेव में, दैट वाज अ ब्रिटिश इंडिया पीरियड, सेकेंड वेव में ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। तो सेकेंड वेव में हम सब कुछ खुला छोड़ दिए है। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि कोई कहीं पे भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। एंड पहले तो लोग टोकते भी थे, अब मैं क्या टोकूंगा? अगर मैं खुद अपना मास्क प्रॉपर्ली नहीं पहन रहा हूँ, आपको मैं क्या बोलूं? आप तो बोलोगे ना, आप भी तो नहीं पहन रहे हो ठीक से। सो पॉइंट इज, दिस इज लाइक व्हाट टू से, हम सब लोगों को, और वो एक एक लोग से ही चेन बनेगा। सिर्फ हम लोग टीवी में डिस्कस कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारे आसपास में जितना लोग रहे, जिनसे हम बात करें, सबको हमें ये बात चर्चा करना है कि भाई अभी भी हमारे पास पूरा हम लोग खतरे में है, एंड वी हैव टू स्टॉप द प्रिवेंशन। दिस इज अ विशियस साइकिल। एंड रिमेंबर, किसी को कोविड हो गया, वो सोच किसी को एंटीबॉडी भी डेवलप हुआ था, बट रिमेंबर दिस एंटीबॉडी इज ऑल्सो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। आपको 1 महीने के बीच में दोबारा कोविड हो सकता है, तीसरे महीने में आपको कोविड हो सकता है। दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सो ऐसे नहीं है कि जीरो मॉर्टेलिटी, कल भी मॉर्टेलिटी हुआ है, आज भी मॉर्टेलिटी हो रहा है। सो वो उसके दायरे में कौन आएगा, नोबडी नोज। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी भी हमें वेट करना है फॉर कपल ऑफ मंथ्स। Right. Dr. Raheja, if we can come to you, you listed the basic precautions, the most important ones about wearing a mask, maintaining social distancing, hand hygiene. But if we talk about the specific precautions, yes, the instruction is that people should stay at home and it's not important to go out. But given the festive season, many may choose to go out to shop for clothes and whatever one does during festive season. What is a good protocol, good habit, good sort of practice to follow when you go out to a market to shop, which already may be crowded with other people? Ideally, you shouldn't go, but if one has to, how should one go about it, Dr. Raheja? Yeah, the most important is you have to wear the mask, and the mask you must wear it properly, covering your nose, mouth, everything, and wear specs or face shield, because this virus can enter through 3 places. And when you are in the shop or in the market, try to maintain the distance. कम से कम 1 मीटर की दूरी आप जरूर बनाने की कोशिश करें। 2 गज है तो बहुत ही जरूरी है, 2 मीटर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 मीटर तो जरूरी है। और तीसरी चीज, अननेसेसरली चीजों को ना छुएं, और यदि छूते हैं तो सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। और पेमेंट जो है डिजिटल करें, ज्यादा अच्छा है। और कम से कम टाइम, आई एम रिपीटिंग, प्लीज स्पेंड मिनिमम पॉसिबल टाइम टू बाय वॉट एवर यू वांट टू बाय। क्योंकि हम ये भी कहते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट, और कितना ड्यूरेशन का कॉन्टैक्ट रहता है वायरस के साथ आपका। तो यदि आप एक जगह पे 1 घंटा लगाते हैं तो आपका, और भीड़ भी है, लोग भी काफी हैं, एंड एज वी नो कि एवरीवन इज नॉट वेयरिंग द मास्क एज ऑन नाउ, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं, जैसे जिनकी 1 साल से अधिक है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट है, एस्थमेटिक है, सीओपीडी के पेशेंट है, क्रॉनिक लंग डिसीज के, क्रॉनिक लीवर डिसीज के, क्रॉनिक किडनी डिसीज के, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और इनकी इम्यूनिटी कम है, ब्लड कैंसर है, रीनल ट्रांस,
है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बहुत जी 8 साल के नीचे, ऐसे जो हाई रिस्क ग्रुप है, इनके लिए तो स्ट्रिक्टली से प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। और जाना है तो द पर्सन बिल्कुल इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एज, यंग जो है उसके जाए, पूरी प्रिकॉशन पूरे लें। प्रिकॉशन और घर आने के लेके बाद जाना जरूरी है चाहिए। कि आप अपना जी डॉक्टर चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चैटर्जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन के बारे में जो है लगातार सवाल दर्शकों के आते रहते हैं और आम जन के मन में भी उत्सुकता है, और मुझे लगता है कि आप इसका जो स्टेटस है उसे बेहतर दिखा पाएंगे। और सरकार भी इस तरह से लगातार जिस तरह से कदम उठा रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज इस पर आर्थिक सहायता की बात कही है और उन्होंने कहा है कि बायोटेक विभाग को 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यही हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए आप इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो वैक्सीन का काम है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कब तक अवेलेबल हो जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैक्सीन है इसका असर कितने % होगा? देखिए, आपका वैक्सीन के ऊपर सरकार बहुत फास्ट ट्रैक काम कर रहा है, डेफिनेटली फॉलोइंग द प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस। वैक्सीन कोई एक दिन का क्रिएशन हो नहीं सकता, यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल फेज, यू नो दैट। तो फेज वाइज ट्रायल हो रहा है एंड सरकार इसमें बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस एंड गेट रेडी टू लाइक अप्लाई वैक्सीन। लेकिन साथ में ये भी हमें समझना है कि वैक्सीन का एफिकेसी कितना होगा ये प्रेडिक्ट करना अभी से थोड़ा मुश्किल होगा। दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम एंड ऑफ कोर्स द वायरस, द वैक्सीन। तो आई कैन से कि दिसंबर जनवरी एक टेंटेटिव टाइम सरकार की तरफ से भी आ रहा है रिपोर्ट, बट अगेन आई कैन नॉट से कि दिस इज द स्पेसिफिक डेट इस दिन आएगा। बट यस, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज कि वी आर गेटिंग अ वैक्सीन एंड द वैक्सीन इज गोइंग टू सेव अस मेनी, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप, दे विल बी सेव फॉर द वैक्सीन। बट अगेन वैक्सीन आना और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना, सब में मिलना, उस वहां तक भी हमारे हैबिट को, हमारे पास सोशल वैक्सीन जिसकी बात हो रहा है वो हमें कंटिन्यू करते रहना है, राइट। और उसमें भी थोड़ा ट्राइजिंग होगी, किसको पहले मिलेगा, सबको एक साथ 130 करोड़ को एक ही दिन में सबको मिल गया ऐसे भी नहीं हो सकता। तो उसका भी एक चेन मेंटेन होगा, प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोल्ड चेन वैक्सीन चेन मेंटेन होगा, सब कुछ का तैयारी चल रहा है। माने इट इज अ वेरी कंप्रिहेंसिव प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। बेस्ट प्रोटेक्शन। यस, सोशल बिहेवियर हमें कंटिन्यू करते रहना है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर चैटर्जी, since you're an expert of healthcare for elderly people, for senior citizens in particular this season, when the pollution is high, when the risk is again going high, if you talk about Delhi NCR, what special precautions should they take? Should they be stepping out at all during the festive season? You know, it is a time to socialize for people, but what special precautions for the elderly in the next few days, sir? आई थिंक सोशलाइजेशन वर्चुअल मीडिया के थ्रू हो, लोग आ रहे किसी किसी के घर में, दे कैन कम विद अगेन विद प्रॉपर प्रिकॉशन। इवन परचेजिंग जो आप बोल रहे हो, मार्केट में जाके खरीदारी करना, वो भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है एंड उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीनियर सिटीजन डेफिनेटली दे शुड गो मिनिमम आउट ऑफ होम बिकॉज द पॉल्यूशन इज देयर, कोविड क्राइसिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दे नो दैट थिंग्स। दे मस्ट टेक, इफ इट इज अवेलेबल इन नियर बाय pharmacy as well as they are connected with doctor, they must take vaccine for flu which is available, and the vaccine for pneumonia if it has not been infused to inoculated to them. These two are must. We don't have any scientific evidence to say कि अगर flu का टीका ले लिए तो COVID कम होगी, but definitely that will prevent you from flu, which is equally dangerous. Pneumonia is equally dangerous for elderly people, especially who are vulnerable, who has multi-morbidity. बाकी socialize करते रहना है घर के अंदर से, नहीं तो socially isolated हो जाएंगे, depressed हो जाएंगे, तो वो अलग problem है। Mental health, physical health को हमें equally maintain करते रहना है। Physical exercise घर के अंदर must. Adequate food, adequate nutrition, adequate water is must. Interaction with your family, interaction with your peer group, interaction with young generation is a must to keep your mind healthy. And I believe senior citizen are that way very very contented. For उनके लिए उन्होंने जिंदगी का 60-70 बार उन्होंने दिवाली देख ली है, एक दिवाली वो मिस भी करे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। They can stay at home. प्रिकॉशन पूरी तरह से रखना है। डॉक्टर रहेजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रहेजा, एक दर्शक हैं प्रिंसी नागपाल, उनका सवाल आया है। वो कहती हैं कि
बताएं कि बच्चों के लिए अगर स्टेशनरी खरीदनी है तो उसको सैनिटाइज किस तरह से किया जाए, और जो स्टेशनरी है उस पर वायरस कितनी देर तक रह सकता है। और कई दर्शकों का ये भी सवाल है, जिस तरह से दीपावली है उसकी खरीदारी की जा रही है, तो उस खरीदारी में किस तरह से सेफ्टी बरती जाए। डॉक्टर रहेजा। कर रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अननेसेसरली इधर ज्यादा सामान को छुए मत, जो खरीदना उसी को लें और ग्लव्स डाल लें तो ज्यादा अच्छा है। और तीसरी चीज है कि जो भी सामान आप घर में ला रहे हैं, जरूरी है कि जैसे स्टेशन है तो उसको आप एक सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकते हैं और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, 1 दिन या 2 दिन, ताकि यदि उसके ऊपर वायरस है भी तो आप उसको वो अपने आप इनएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, स्टेशनरी में भी ये जरूरी बात है कि जिस चीज का कार्टन है उसका जो कार्टन है वो डिस्पोज ऑफ दीजिए, और जो डेज 96 आवर्स in any of the stationery or any of the products otherwise. So we have to ensure that before using it, whatever we can sanitize, whatever we can wash, or otherwise keep that product at least for 3 days or so, 3 or 4 days, and then you can use it safely. And most important is that children should be advised not to, I mean, there is a tendency for the children to put pencil, pen in their mouth, sort of thing, na? These things should be taught to them कि भैया आप ये वो समय है जब Right, Dr. Raheja, there seems to be a little technical issues with the connectivity at the moment. Dr. Prashant Chatterjee, if I can come to you, a question has come on Facebook from Ankur. He talks about with the winter season also being around, cold, bad throat, these problems are quite common. Alongside the challenges of pandemic, how do we take precautions? Yeah, for both the things, the precautions are almost same. It is also, you have to understand, this is also a coronavirus family. Understand that precautions are same for both the cases. घर के अंदर रहना है, अगर अब थोड़ा भी ठंड भी हो रहा है तो आपको थोड़ा गर्म कपड़े भी पहनना है बाहर जाने के लिए। इवनिंग में हम बाथ ना ले, अगर लेना भी है तो गर्म पानी में करना चाहिए। वेयरिंग मास्क, सैनिटाइज, ये तो है ही, बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी पेशेंट को, अगर घर में किसी को खांसी बुखार हो रहा है, उसको हम फ्लू सोच के छोड़ ना दे, बिकॉज ड्यूरिंग अ पैंडेमिक अगर आपको 2-3 दिन का बुखार है विद ऑल सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ आइदर फ्लू और कोरोना, देन यू मस्ट गेट टेस्टेड और कॉन्टैक्ट विथ योर लोकल डॉक्टर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे केस मिला है जिसको 7 दिन 10 दिन तक ये माना गया दिस इज प्रोबब्ली अ फ्लू, देन एट द एंड टाइम दे केम विथ अ ब्लड प्रेशर ड्रॉप एंड सैचुरेशन ड्रॉप। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट। सारे जुकाम फ्लू नहीं है, वैसे सारे जुकाम कोविड भी नहीं है। सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। 2-3 दिन बुखार हो रहा है, सिम्टम आ रहा है फ्लू का, फ्लू लाइक सिम्टम है, आसपास में आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, या क्योंकि आजकल तो हर जगह पे कोरोना है, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई ये कोरोना भी हो सकता है, उसको नजरअंदाज नहीं करिए, स्पेशली इफ दे आर एट द वल्नरेबल एज ग्रुप। बिल्कुल बेहद अहम बात आपने बताई है, और इससे संबंधित सवाल दर्शकों के आते भी रहते हैं हमारे पास कि अगर कुछ दिन बुखार लगातार हो गया है या जुकाम हो गया है तो किस तरह से डिफरेंशिएट करें, वो आपने बेहद अच्छे तरीके से समझा है। इससे अलावा डॉक्टर चैटर्जी, एक जो सवाल आता है वो एंटीबॉडीज को लेकर भी आता है, जिस तरह से री इन्फेक्शन के, हालांकि हमारे देश में इस तरह की जो वाकये बहुत कम सुनने को मिले हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो कई देशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो री इन्फेक्शन को देखते हुए जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उनका जो वर्क पीरियड है वो कितना रहता है, और किस तरह से इस बात का बचाव किया जाए कि री इन्फेक्ट ना हो, और अगर कोई री इन्फेक्ट होता है तो क्या उसके लिए ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है? देखिए, अगेन
आंसर इज मोस्टली हियर हम प्रोबेबल में बताएंगे। किसी का एंटीबॉडी 1 महीने रह रहा है, किसी का 6 महीने भी रह रहा है। बट अनलाइक मेनी अदर इन्फेक्शन जिसमें एक बार एंटीबॉडी आ गया तो लाइफ लॉन्ग रहता है, इसमें वो नहीं है। सो आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, आपको सेरो कन्वर्शन हुआ, आपने एंटीबॉडी देखा, आपको आईजीजी एंटीबॉडी आ भी गया है, तो जरूरी नहीं है कि यू आर टोटली इम्यून। ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है और इससे भी स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज अ फ्रेश इन्फेक्शन, दैट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन ऑल्सो, और उस टाइम में क्या सिवियरिटी होगा वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और आपका सिम्टम भी डिफरेंट हो सकते हैं। पहली बार आपको सिम्टम आया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जुकाम, खांसी, बुखार। दूसरे बार आपका इन्फेक्शन आया, सिम्टम आया ओनली लॉस ऑफ टेस्ट एंड सेंसेशन एंड स्मेल। ये हुआ है, हमारे फ्रेंड में ही हुआ है। So and that time the presentation was totally different. Right, sir. So on that note, we have to be careful. Yeah. Right. We wish we could continue our conversation, sir, but we had limited time. On that note, Dr. Prashant Chatterjee, Dr. S.M. Raheja, thank you very much for joining us today once again and sharing all those invaluable information about protecting oneself from COVID-19. बिल्कुल शुभेंदु, और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर चैटर्जी ने दी कि अगर री इन्फेक्शन होता है तो उसके सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं और कितना ये सीवियर हो सकता है इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप सावधानी बरतें, कोई लापरवाही ना करें। लगातार जिस तरह से दूरदर्शन के माध्यम से भी कहा जा रहा है, सरकार भी लगातार कह रही है और तमाम जागरूकता के अभियान चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने हाथ जो है ज़रूर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। लेकिन दिवाली के मौके पर जब आप ज्वलनशील पदार्थों के पास हों तब सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें, तब पानी से ही अपने हाथ धोते रहें। और घर में डॉक्टर्स ने भी बताया है कि साबुन और पानी से बेहतर विकल्प कोई भी नहीं है। I think the most important precaution that we keep repeating is about wearing a mask. Remember to wear a mask wherever you are. Protect yourself and protect your loved ones, just as we're doing as well. बिल्कुल, मास्क हमेशा ऐसे अपने पास रखें और जिस तरह से हम लगा रहे हैं इसको लगाएं, और पूरी तरह से ये मास्क जो है आपके फेस को कवर करना चाहिए। खुद भी जागरूक बने और इस जागरूकता को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और देश की सुरक्षा में योगदान के लिए। इसी संदेश के साथ लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।